حضرات شعراء کو پڑھنے میں بھی بہت ڈھیر سارے انعام ملتے ہیں اور اس کے بعد میں جانے کے بعد بھی بہت موٹا لفافہ ملتا ہے. ان کے پیچھے CBI باہر کرنی چاہیے. الحمدللہ بہت اچھا آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں. الحمدللہ. قاری کریم نوری صاحب ایک جلسے میں پڑھ رہے تھے تو ان کے شعر میں کشکول تھا. تو انہوں نے مجمع والوں سے کہا کہ کشکول کا مطلب سمجھتے ہیں؟ تو مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضرت اب کی آئیے گا تو ساتھ میں لے کے آئیے گا. ہے کہ نہیں؟ ایسے پڑھے لکھے لوگ مجمع میں ہوتے ہیں. بہت اچھا سن رہے تھے آپ اور اپنی نیکیوں میں اضافہ فرما رہے تھے. اس سے امین شریعت میں آپ تشریف فرمائیں. بھائی جان معذرت چاہوں گا آگے کی کرسیاں ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ نے آگے سے اٹھا کر کے آگے ہی لگائی. اچھی بات ہے. ویسے کرسیاں جہاں لگی ہیں وہی لگی رہیں تو اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت 3-4 بار تو پھیر بدل ہوا ہے کرسیوں کے لیے. کوئی ہائی کورٹ گیا کوئی سپریم کورٹ تک چلا گیا. ہمارے ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ودھائک اور MP سپریم کورٹ چلا گیا. چھوٹے سے الیکشن کے لیے لوگ ہائی کورٹ. اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا فرمائے. ایک شعر کہتا ہوں جدھر سے گزرا ہے وہ راستہ مہکتا ہے. جدھر سے گزرا ہے وہ راستہ مہکتا ہے. جب اس کا نام لوں حرف دعا مہکتا ہے. بات صحیح ہے تو زور سے سبحان اللہ کہہ دیں. اور زور سے سبحان اللہ. جدھر سے گزرا ہے وہ راستہ مہکتا ہے. جب اس کا نام لوں حرف دعا مہکتا ہے. میرا نبی وہاں ٹھہرا گزر گئی صدیاں مگر ابھی بھی وہ غار ہرا مہکتا ہے. میرا نبی وہاں ٹھہرا گزر گئی صدیاں مگر ابھی بھی وہ غار ہرا مہکتا ہے. وہ گلستان شہدی کا پھول ہے دانش اسی لیے میرا احمد رضا مہکتا ہے. وہ گلستان شہدی کا پھول ہے دانش اسی لیے میرا احمد رضا مہکتا ہے. یا ہم دیکھتے رہے اور دیوانہ چلا گیا. ایک پل میں وہ یہاں سے مدینہ چلا گیا. کلمہ جو سنگ ریزوں نے پڑھنا کیا شروع ماتھے پہ ابو جہل کے پسینہ نکل گیا. کلمہ جو سنگ ریزوں نے پڑھنا کیا شروع ماتھے پہ ابو جہل کے پسینہ نکل گیا. ہم بھی نماز اب کی جمعہ سے پڑھیں گے اب یہ کہتے کہتے ان کا جنازہ نکل گیا. نماز اب کی جمعہ سے پڑھیں گے اب یہ کہتے کہتے ان کا جنازہ نکل گیا. کئی نعتیں آپ نے سن لی ہے اب تقریر ہونی چاہیے. ہم آپ تمامی حضرات عرس مقدس میں تشریف فرما ہے. شہزاد حضور امین شریعت عالم بابل صوفی باسفا حضور صوفی شفیع الدین شاہ صاحب قبلہ نے اچھے خطبہ اور شعراء کو دعوتیں پیش کی ہے. اور میں ایک اعلان اور کر دوں جس کو سن کر کے آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے. شہزاد رسول اولاد غوث اعظم پیر طریقت رہبر شریعت سیدی آقائی مولائی ملجائی حضور سید احمد حسین شاہ صاحب قبلہ مدد نورانی موربی گجرات سے جو تشریف لانے والے ہیں. آپ حضرات ان کے نورانی چہرے کی زیارت کریں گے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ فرمائیں گے. ایک نظر بھی حضرت کی اگر پڑ گئی تو آخرت کے لیے سامان ہو جائے گا. بہت محبت سے بہت قریب سے آپ بیٹھے رہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ پتھروں کے شہر سے وہ آنے والا خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت ثانی زبانی بلبل راجستھان حضرت علامہ سمیع اللہ صاحب قبلہ راجستھان ان کی گفتگو 30 منٹ کی ہونی ہے. ہم آپ تمامی حضرات محبتوں سے سماعت کریں گے. ہم چاہتے ہیں یہاں سے وہاں تک پورے لوگ نعرہ تکبیر و رسالت کی سلامت کریں. اور اللہ کی تعان ہو گئی آجا کی چند سانسیں بچی ہیں حساب میں آنکھیں تو انتظار میں 2-4 ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو آج یہ مبارک رات نصیب فرمائی
हम और आप अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र को सुनने के लिए जश्न औलिया किराम में शिरकत की सारतें हासिल कर रहे हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला ताला हमारी और आप सभी हजरात के हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लाइक मुबारकबाद है वो हजरात जिन्होंने इस महफिल पाक में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला उनके हम सब के नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। खुसूसियत के साथ लाइक मुबारकबाद है पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत शहजादे अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा शाह सूफी शरफुद्दीन साहब क़िबला खलीफा हुज़ूर नज़मी मियां, जिनके कंधे से कंधा मिलाकर आपने इस महफिल पाक का एहतमाम किया। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और फैज़ाने सरकार अमीन शरीयत से हमें और आपको माला माल फरमाए। मेंबर नूर पर नकीब जलसा खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हजरत हाफिज वकारी सफ़ीउल्लाह साहब, मैं किसका नाम लूँ और किसका नाम छोड़ दूँ? जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफताब है। आप इन सब के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और दुआ करें कि अल्लाह इन सब के इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। वक्त बहुत कम है हज़रात, आप हज़रात यहाँ पर बैठे हैं, सरकार अमीर शरीयत का रोज़ा नज़रों के सामने है। आप इस तसव्वुर में बैठे, ज़माना देखे ना देखे, जिनकी याद में आप यहाँ बैठे हैं वो हमें और आपको ज़रूर देख रहे हैं। हज़रात आप हज़रात यहाँ पर आए, ये आपका आना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल कर ले तो इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में हमारे बख्शिश और निजात का ज़रिया बनेगा। हज़रात आइए सबसे पहले हम और आप सभी हज़रात मिलकर अपनी और पूरी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के मालिक व प्यारे जो बयान से बाहर है, हम और आप क्या बयान करेंगे? अल्लाह अकबर। मैं आपको बताऊं गुजरात का वो मामला नज़रों के सामने रखें। हज़रात गुजरात की सरजमीन पर एक खातून का बयान है कि जब बलवाइयों ने हमारे मकान की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाया, जवान जवान बच्चियां हमारे घर में थी। अल्लाह अकबर। हमारे नज़रों ने देखा और निगाहों ने देखा कि मकान लूटे जा रहे हैं, घरों में आग लगाई जा रही है, इज्जत व आबरू से खिलवाड़ किया जा रहा है। वो खातून कहती मैं अपने बच्चियों को लेकर के छत पर चढ़ गई और चढ़ने के बाद में मैंने कहा अब क्या करें, अब हमारी बारी है। हमारे घर की तरफ बलवाई बड़ी तेजी के साथ पड़ते हुए चले आ रहे हैं। हाय अब हमारा क्या होगा? हमारे मकान को जला दिया जाएगा, हमारे इज्जत व आबरू को लूट लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। ये सोच ही रही थी तब तक के खातून कहती मैं अपने लड़कियों से कहती हूँ ए बेटी आओ सब मिल करके अल्लाह के नबी पर दुरूद पाक पढ़ें। सारी बच्चियां इकट्ठा हो गई और इकट्ठा होने के बाद खातून का बयान है हम लोग दुरूद पाक पढ़ना शुरू करती हैं और जब दुरूद पाक पढ़ती है पढ़ते पढ़ते मकान के छत पर पत्थर रखे हुए थे। अल्लाह अकबर। पत्थर को जब फेंकना शुरू किया तो बलवाई भाग रहे थे और उनका बयान था कि ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ बम आ रहा है। अल्लाह अकबर। ये दुरूद पाक की बरकत है प्यारे, जिसने बलवाइयों को पीछे हटा दिया और उनके इज्जत व आबरू की हिफाजत हुई है। आप भी दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह मकान में बरकत होगी। दुरूद पाक पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र से महफूज कर लिए जाओगे। दुरूद पाक पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज हो जाओगे। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दिल लगा करके पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हस्बे मामूल आदत के मुताबिक नाते पाके रसूल आला हजरत हिबाम इश्क मोहब्बत कंजुल करामत जबरुल हजरत हैं। ये बरेली के अहमद रजा आला हजरत कैसे हो गए? चाय पी करके होटलों पर लोग तबसरा करते हैं कि आला हजरत, सुन्नियों को देखो तो आला हजरत, उनके बच्चों को देखो तो आला हजरत, उनके बूढ़ों को देखो तो आला हजरत, मस्जिद में देखो तो आला हजरत, मदरसे में देखो तो आला हजरत, खानकाह में देखो तो आला हजरत, जहाँ देखो वहीं आला हजरत सरकार हैं। नादान सुन, आला हजरत सरकार
सिर्फ भारत में जाने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ भारत का सुन्नी मुसलमान नहीं पहचानता है, बल्कि मेरे इमाम जब गए अरब की सरजमीन पर और खाने काबा की जियारत करते हैं, खाने काबा का तवाफ करते हैं, और जब हज से फारिग हुए ऐलान हुआ हाजियों अब मक्का से मदीना चलो, सारे हाजी जा रहे हैं मगर सबका अलग अंदाज है। इमाम अहमद रजा खान का अलग अंदाज है, आंखों में आंसू है, दिल बेकरार है। कब रोज़े रसूल की जियारत हो, कब अल्लाह के रसूल का रोजा देखो। अल्लाह अल्लाह चलते चलते ऐलान हो गया हाजियों बड़े अदब के साथ चलो, अब मदीना शरीफ की सराह शुरू हो गई है। अल्लाह अकबर, तमाम हाजी चले जा रहे हैं। इमाम इश्क मोहब्बत के जब मदीना के जर्रों को देखा, वहाँ के दरो दीवार को देखा, वहाँ के वादियों को देखा, तो बेसाख्ता पुकार उठे, मदीने के खीते खुदा तुझको रखे। दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। वो उनका नबी है जो उनको नहीं देखता, हमारा नबी तो हमें कल भी देख रहा था और आज भी मेरे आका हमें देख रहे हैं। और कल मैदान क़यामत में मेरे सरकार हम गुनहगारों को चुन चुन करके मेरे आका शफाअत करके अल्लाह से जन्नत दिलवाएंगे। मदीने के खीते खुदा तुझको रखे और गरीबों यतीमों को ठहराने वाले, गरीबों यतीमों को ठहराने वाले। आला हज़रत सरकार और आगे बढ़े, दिल बेकरार है। सरकार के मुकद्दस रोज़े पर इमाम अहमद रजा खान की नजर पड़ी। आला हज़रत सरकार ने हाजियों को मुखातब करके फरमाया, हाजियों आओ आओ, रोज़े रसूलुल्लाह की जियारत कर लो, अल्लाह के रोज़े की, अल्लाह के रसूल के रोज़े की जियारत कर लो। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुकद्दस रोज़े को चूम लेते हैं और चूमने के बाद में पुकार करके कहते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा देखो। आला हज़रत सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जैसे आप बाहर निकले, मदीना शरीफ के सबसे बड़े आलिम दीन की नजर पड़ती है। कहा नौजवान आओ करीब आ जाओ। आला हज़रत सरकार करीब गए, कहा ये बताओ आपका नाम क्या है। आला हज़रत सरकार कहते हैं मेरा नाम अहमद रजा है, मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तान शहर बरेली से आया हूँ। इतना सुनना था, लाखों का मजमा था, सबको मुखातब करके मदीना शरीफ के सबसे बड़े आलिम दीन जो थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा नौजवान आओ करीब आओ। जब बिल्कुल करीब हो गए तो आला हज़रत सरकार के पेशानी को चूम लिया और चूमने के बाद में कहा लोगों गवाह हो जाओ, इस मर्द मुजाहिद के पेशानी में मैं अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। यहाँ नौजवान नहीं है, ये अपने वक्त का मुजद्दिद आज़म है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर ताजुश शरीया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर, वो आला हज़रत सरकार है। आला हज़रत सरकार को सिर्फ हिंदुस्तान वालों ने नहीं माना है, बल्कि आला हज़रत सरकार अरब की ज़मीन पर पहचाने जा रहे हैं और अल्लाह अकबर उनकी अजमत को तस्लीम किया जा रहा है। इमाम अहमद रजा खान अपने आका की नात लिखते हैं, एक शेर सुने बयान आगे बढ़ जाए। आला हज़रत सरकार अपने आका की बारगाह में अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, आपकी शान व अजमत का तो आलम यह है मेरे आका, ओ आह क्या जो दो करम है शहबत तेरा, वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा, वाह क्या जो दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और फर्श वाले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने, फर्श वाले
अदब का मतलब ताबान बोले, गुलाम मोती ईमान बोले, वहसन मिन कलम तरक्कत वैनी वाजबल मिन कलम तरदिन निसाओ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ल ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। हजार बार बुशोजम कहन जब मुझको गुलाब हुनूस नाम तो गुफ्तन में कमाले अरबिज। बुतों के शहर में जाके खुदा का नाम लिख देना, जहाँ पे कुफ्र लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना। गौहरे शहर पस्त को बाला कर दे, शहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, बताओ सब कुछ हो क्या मुसलमान भी हो। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज है लौहो कलम तेरे हैं। आजाद आज का अजीमुशान इजलास इसको निस्बत है सरकार अमीन शरीयत से, इसको निस्बत है उर्से अमीन शरीयत से। शहजादे गिरामी वकार हुजूर सूफी साहब किबला ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ इस महफिल पाक को सजाया है और आपने कंधे से कंधा मिला करके उनको बताया कि हजरत हम आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके वालिद गिरामी के चाहने वाले हैं, हुजूर उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। उन्होंने आकर के हमें अल्लाह अकबर इश्क नबी का जाम पिलाया था। जाफराबाद के गिरदो नमाह में अक्सर उलमाए किराम जो पाए जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जो उलमा है अल्लाह अकबर हजरत के शागिर्दों में से पाए जा रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि हजरत की शान का आलम क्या रहा तो वो बताएंगे कि हजरत की शान का आलम क्या रहा। अल्लाह अकबर उनके तकवे का कोई जवाब नहीं था, उनके इबादत का कोई जवाब नहीं था। अल्लाह अकबर हमा वक्त आपकी सोच ये रहती थी कि अल्लाह अकबर बच्चों को इल्म दीन नबी सिखाया जाए और नजदी वहाबियों से इन सुन्नियों के अकीदे को बचाया जाए। सरकार अमीन शरीयत ने अल्लाह अकबर जिस मिशन को छोड़ा था उसी मिशन को लेकर के हुजूर सूफी साहब किबला आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब एक जामिया कायम किया है जो अनकरीब आप देखेंगे अपनी आंखों से। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपकी बच्चियां पढ़ेंगी। यहाँ पर दारुल उलूम चल रहा है, इनके वालिद गिरामी ने कायम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह कयामत तक जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह उनको सवाब मिलता रहेगा। सरकार अमीन शरीयत का रोजा नजरों के सामने है। आज मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, वो जाफराबाद और गिरदो नमाज से आने वाले मुसलमानों, अखबार आप पढ़ते हो, सोशल मीडिया का दौर है, हज़रात आप मोबाइल चलाते हो, अखबारों में खबरों में आप सुनते हो। हज़रात आपने सुना होगा चुनांचे एक कुत्ता ना हंजार जिसने अल्लाह के रसूल के अल्लाह के रसूल के शरीयत का खून किया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अल्लाह के फरमान को बदलना चाहा, कुरान पाक के आयतों पर हमला करना चाहा और कहा कुरान पाक के आयतों को मिटाया जाए। कुरान पाक की 26 आयतें हैं जो आतंकवादी का पैगाम दे रही हैं। मैं कहता हूँ ऐसे नापाक सहन रखने वालों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। जब ऐसे नापाक सहन लेकर के लोग मैदान में आए हैं उनके गर्दन उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया है और उन्हें बता दिया गया है कुरान पाक की अजमत क्या है, इस्लाम की अजमत क्या है, इस्लाम का वकार क्या है, इस्लाम का मर्तबा क्या है। उस जालिम को पता नहीं है। उससे पहले बड़े बड़े गुंडे और बड़े बड़े मक्का के सड़े हुए काफिर मैदान में आए थे और कुरान पाक को बदलना चाहा था, मगर उनकी ताकत एक तरफ थी। अल्लाह अकबर मेरे सरकार की अजमत को मुलाहिजा करो। मेरे आका ने चैलेंज किया था तुम्हारे अंदर अगर पावर है, अपने इल्म पर बड़ी महारत रखते हो, तुम्हें अपने अरबी पर बहुत नाज है तो लाओ कुरान की तरह एक हरफ ही दिखा दो, कुरान की तरह एक आयत ही दिखा दो। अल्लाह सारे मिलकर के बहुत ताकत लगाया, सर से पांव तक जोर लगाया, मगर कुरान पाक की एक आयत बना करके पेश न कर सके। अल्लाह कुरान आज भी ऐलान कर रहा है ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। आज देखा गया जगह जगह एहतजाज हो रहा है, मगर चंद मुसलमान हैं जो मैदान में आए हैं और बाकी अपने मकान में सो रहे हैं। जाफराबाद और गिरदो नमाज से आने वाले मुसलमानों, अब सोने का वक्त नहीं है, अब भी नहीं जागोगे तो बताओ कब जागोगे। सरकार अमीन शरीयत की आवाज दे रही है, उठो उठो। उठने के बाद मैदान में आओ और जालिमों को बता दो हम कुरान के लिए गर्दन भी कटा सकते हैं, कुरान के लिए अपने जान को भी कुर्बान कर देंगे और जमाने को बता देंगे तुम्हारे अंदर अगर ताकत है तो कुरान पर उंगली उठा कर दिखाओ। अल्लाह अल्लाह जब कुरान के खिलाफ अगर कोई जुबान दराजी किया है तो उसकी जुबानें काट ली गई है, उसे फांसी तक पर चढ़ा दिया गया है। मुसलमान अपने आप को पहचान, आज तुम अपने मकान में सो रहे हो, अल्लाह कुरान पाक की अजमत से खिलवाड़ किया जा रहा है और तुम अपने मकान में आराम से सोते हुए नजर आ रहे हो। आओ जरा देखो, वाक़या सुनाना मकसद नहीं है बल्कि ज़हन व फिक्र में जो बात डालना चाहता हूँ। आज आप खामोश हैं, आज अपने
मकानों में सो रहे हैं। आज आप चुपचाप सारी खबरें देखने के बाद में अपने दुकानों मकान में खामोशी के साथ बैठे हुए हैं और रात फिर कहते हैं कि हम मारे जा रहे हैं, हम सताए जा रहे हैं, हम परेशान किए जा रहे हैं, हम पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मुसलमानों, कम से कम मुसलमान बन तो जाओ, मोमिन बन तो जाओ। अगर वाकई में हमारे दिल में खुदा का खौफ होता, रसूल पाक की मोहब्बत का चिराग जल रहा होता, तो आज हम खामोश नहीं बैठते, बल्कि मैदान में आते और जमाने को बताते कि देखो कुरान के मानने वालों की तादाद कितनी है, कुरान पाक के चाहने वालों की तादाद कितनी है। अल्लाह अल्लाह हम कल भी ऐलान करते थे और आज भी ऐलान कर रहे हैं और सुबह क़यामत तक ये ऐलान होता रहेगा। वसीम रिज़वी जैसे जालिम कुत्ते को ये पैगाम बता देना और ऐलान कर देना, अल्लाह ताला का हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला का फरमान ना बदलेगा, अल्लाह ताला का फरमान ना बदलेगा, अल्लाह ताला का फरमान ना बदलेगा कि अल्लाह ताला का फरमान ना बदलेगा, फरमान ना बदलेगा। क्यों? तुम लाख करो कोशिश, अरे कुरान ना बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। और बता देना जालिमों को, सुन लो, कुरान बदलने की बात कर रहे हो, अल्लाह अकबर। हम भारत की ज़मीन पर रहते हैं, करीम नवाज सरकार से मोहब्बत करते हैं, हमारे रखवाले भारत के ख्वाजा है, हमारे रखवाले गरीब नवाज सरकार है। हम गरीब नवाज के गुलामी का पट्टा गले में डाल करके कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं और सुबह क़यामत तक ये कहते रहेंगे। हर दौर में है ख्वाजा, अरे भारत के महाराजा, हर दौर में है ख्वाजा, ओ भारत के महाराजा। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। हर दौर में है ख्वाजा, ओ भारत के महाराजा, कि हर दौर में है ख्वाजा, भारत के महाराजा, भारत के महाराजा। भारत का कभी लोगो, भारत का कभी लोगो, अरे सुल्तान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। तुम लाखों करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। ए मुसलमानों, क्या अब भी तुम्हें उठ करके मैदान में आने का वक्त नहीं आया? मुसलमान तो अपने मकान में कब तक सोता रहेगा? अगर यूं ही सोते रह जाओगे तो तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तुम्हें मिटाने की नापाक कोशिशें की जा रही है। कभी कुरान पर हमला किया जा रहा है, कभी इस्लाम पर हमला किया जा रहा है, कभी तुम्हारे अल्लाह पर जज्बात से खिलवाड़ किए जा रहे हैं। मुसलमान, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर और तौबा करके मैदान में तू आगे निकल कर किया और बता दो कुरान के मानने वालों की जमात ये है, कुरान के चाहने वालों की जमात ये है, मुस्तफा के वफादारों की जमात ये है। अल्लाह अल्लाह, हम तो वो मुसलमान हैं। अल्लाह अकबर। हमारी शान ये थी प्यारी कि हमने आग के शोलों पर सजदा किया था, हमने समंदर के लहरों पर सजदा किया था, हमने समंदर में अपने घोड़ों को डाल दिया था और ऐलान किया था, कष्ट तो कष्ट है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने ही ऐलान किया था दिया जा कभी यूरोप के गली छाँव में और कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, कष्ट तो कष्ट है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले सुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लाह अकबर। आओ जरा मैं आपको बताऊं प्यारे, इनको बंद कर दिया। आओ मैं आपको बताऊं प्यारे, अल्लाह के रसूल के
غلاموں کی زندگی آپ ملاحظہ کریں. اللہ پر وقت بہت کم ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں, آپ کہتے ہو ہماری دعا قبول نہیں کی جاتی ہے, آپ یہ کہتے ہو ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے, آپ یہ کہتے ہو ہم تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں. مسلمان ابھی تو وقت ہے, اگر ابھی نہ سمجھا تو کب سمجھے گا؟ ابھی بھی وقت ہے. مسجد میں آ, اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا اور اپنے پروردگار کو منا لے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. خدا کے خوف کو دل میں بسا اور سرکار مدینہ کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جلا. اللہ اکبر. جب اس طرح یہ معمول ہو جائے گا, جب تو اس طرح سے چلے گا, اللہ کے رسول کے شریعت پر عمل کرے گا, تو قسم خدا کی تم مارے نہیں جاؤ گے, تم ستائے نہیں جاؤ گے, تم پریشان کیے نہیں جاؤ گے. آؤ ذرا دیکھو پیارے, ہم وہ مسلمان ہیں, مسلمانوں کی زندگی تم نے کہاں پڑھی ہے؟ آج تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں, موبائل پر ہم فلمی ڈرامے دیکھتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں اگر اخبار آتا ہے تو اخبار میں دنیا کے ماحول کو ہم پڑھتے ہیں اور دنیا کا جائزہ لیتے ہیں. مسلمان کا تجھے قرآن نہیں پڑھا, مسلمان کا تجھے تاریخ کا جائزہ نہیں لیا. اللہ اکبر. ہم ہی وہ مسلمان ہیں کہ جب سمندر میں, اللہ اکبر, سمندر کو پار کر کے کشتیوں کے ذریعے ہم گئے تھے اور جانے کے بعد میں اللہ اکبر جب اسلامی مجاہد نے, اسلامی بہادر نے, اسلامی لشکر کے کمانڈر نے جب کشتی میں آگ لگائی تھی تو مجاہدوں نے کہا تھا سلطان آپ کشتی میں آگ لگا رہے ہیں, اگر ہم ہار گئے تو بتاؤ ہم کیسے بھاگیں گے؟ کوئی دریا میں پل نہیں ہے, کوئی دریا میں اور راستہ نہیں ہے, ہم کیسے بھاگ کر کے جائیں گے؟ تو نبی کے غلام نے آگے بڑھ کر کے کہا تھا نادان تو کیسی باتیں کر رہا ہے, ہم دوست مسلمان نہیں ہیں, ہم تو نبی کونین کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے آئے ہیں اور یہ سوچ کر کے آئے ہیں ہم جس ملک پر اترتے ہیں یا تو اسلام کے پرچم کو لہرا دیتے ہیں یا تو اپنے گردن کو اللہ کی بارگاہ میں کٹا دیتے ہیں. ہم وہ مسلمان ہیں. اور ذرا دیکھو پیارے, ہم نے اعلان کیا تھا کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اللہ اللہ. یہاں گردن کٹانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں قرآن کی عظمت کی بات آئی ہے, یہاں عظمت قرآن کا معاملہ ہے, یہاں قرآن پاک کے 26 آیتوں کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے, یہاں قرآن پاک پر حملہ ہو رہا ہے, احتجاج کرنے کی بات ہو رہی ہے. کیسے مسلمان ہو کہ افغان میں سو رہے ہو؟ تم کیسے مسلمان تو خاموشی کے ساتھ ہر بات کو برداشت کر لیا کرتے ہو؟ آؤ ذرا دیکھو پیارے, اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب کا دورہ ہے وہ, اللہ اکبر. کون عمر؟ جس کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا عمر کسی گلی سے گزر جائے تو اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. وہ حضرت عمر بن خطاب, اللہ اللہ, جس کے نام سے اللہ اکبر کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کانپ جایا کرتے تھے, جس کے نام سے اللہ اکبر جس کی تحریر سے دریا میں پانی آ جائے وہ عمر بن خطاب ہے. اللہ اللہ, جس کے گھر سے کوئی دودھ میں پانی ملانا پسند نہ کرے وہ حضرت عمر بن خطاب ہے. جن کا انصاف کل بھی مشہور تھا, آج بھی مشہور ہے, اور زمانہ اگر ان کے نقش قدم پر چلے تو میں کہتا ہوں بیواؤں پر ظلم نہیں کیا جائے گا, یتیموں کے ارمانوں کا خون نہیں کیا جائے گا, غریبوں کے حق کو مارا نہیں جائے گا. حضرت عمر بن خطاب کا دورہ ہے. ہرقل عالم نے اللہ اکبر جو لشکر بھیجا تھا حضرت عمر بن خطاب نے عبداللہ کے ساتھ 40 ساتھیوں کے ساتھ عبداللہ کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد میں کہا اللہ اکبر, اے عبداللہ اسلام کے دامن سے, اسلام کے دامن کو چھوڑ دو. اللہ اکبر, تم قرآن کو مانتے ہو, تم اللہ کے نبی کو مانتے ہو, تم خدا کو ایک مانتے ہو, مذہب اسلام سے پھر جاؤ. آؤ آؤ, تم ہمارے دین کو قبول کر لو. آؤ آؤ عیسائی بن جاؤ, اور بننے کے بعد میں ہم تمہیں تخت و تاج پر بیٹھا دیں گے, ہم کسی ملک کی تمہیں کوئی عہدہ دے دیں گے. اللہ اکبر. اگر تم چاہتے ہو تو کسی حسین و جمیل لڑکی سے تمہاری شادی کر دی جائے گی, تمہیں ہیرا جواہرات دے دیا جائے گا. یہ لالچ دیا. حضرت عبداللہ نے پلٹ کر کے کہا تھا نادان تو کیسی باتیں کرتا ہے, ہم نے رسول اللہ کے مقدس رول چہرے پاک کو دیکھا ہے, ہم تو نبی کے حسن کے دیوانے ہیں, ہم تو رسول پاک پر ناز کرنے والے ہیں. ارے کہا اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جن کے پاس مال نہیں ہے, جن کے پاس تخت و تاج نہیں ہے, جن کے پاس ہیرا جواہرات نہیں ہے. تب عبداللہ نے پلٹ کر کے کہا تھا نادان وہ دنیا کے کوئی اور انسان ہوگا جو نقبال و زار پر اور دولت دنیا کے دولت پر ناز کرتا ہے. ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں, ہم دنیا کے مال پر ناز نہیں کرتے ہیں, ہم آمینہ کے لال پر ناز کرتے ہیں اور زمانے کو بتاتے ہیں ہمیں مال نہیں چاہیے, ہمیں آمینہ کا لال چاہیے, ہمیں مدینے کا تاجدار چاہیے. اللہ اللہ. ہرقل آدم نے کہا جلادوں سے جلدی کرو, کڑاہا لایا جائے اور اس میں تیل کھولایا جائے. اللہ اکبر. جب تیل کھولایا گیا, کھولانے کے بعد 2 قیدیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا قیدیوں کو کھولتے ہوئے تیل کے حوالے کر دو. جب تیل کے حوالے کر دیا گیا اور کرنے کے بعد میں چند منٹ کے بعد میں قیدیوں کی ہڈیاں تیل پر نظر آ رہی تھی. اللہ اللہ. کہا دیکھو عبداللہ تمہارا بھی یہی حال ہونے جا رہا ہے, جلدی کرو, اسلام کے دامن کو چھوڑ دو, قرآن کو ماننا چھوڑ دو, خدا کو ایک مت مانو,
रसूल अल्लाह के गुलामी का पट्टा अपने गले से निकाल करके फेंक दो। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल्ला ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तब तक के हिरकले आजम ने कहा था अब्दुल्ला के हाथ में हथकड़ी डालो। हाथ में हथकड़ी डाल दी गई। कहा पाँव में बेड़ी डालो। पाँव में बेड़ी डाल दी गई। अब्दुल्ला को कहा लेकर के चलो। अल्लाह पर खौलते तेल के करीब लाया गया। अब्दुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल्ला रोने लगे। कहा अब्दुल्ला क्यों मौत से डर गए? तो अब्दुल्ला ने कहा था उस शाह अपने जान की परवाह नहीं करते और खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते। नादान हम मौत से नहीं डरे। तो अब्दुल्ला फिर रोते क्यों हो? आखिर तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? कहा नादान तू गलत समझ रहा है, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मुझे मौत से डर लग रहा है, मुझे खौलते हुए तेल के हवाले किया जा रहा है। कहा अब्दुल्ला फिर रोते क्यों हो? अब्दुल्ला ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ, एक काश मेरे पास एक ही जान है, अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने का वक्त आया है। अज़मत कुरान के लिए जान देने की बारी आई है, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने का वक्त आया है। तो अब्दुल्ला के पास में एक ही जान है, एक काश हजारों जानें होती तो एक एक करके अब्दुल्ला रब की बारगाह में कुर्बान कर देता। अज़मत इस्लाम पर कभी आँच न आने देता, अज़मत कुरान को कभी पामाल न होने देता। अल्लाह अल्लाह तब तक कहा जल्लादों से काम करो, अब्दुल्ला को तेल के हवाले कर दो। अल्लाह होकर जैसे अब्दुल्ला को जल्लाद लेकर के चले, कराहा बिल्कुल करीब है, खौलता हुआ तेल नजरों के सामने है। तब तक के हजरत उमर इब्न खत्ताब का कासिद खत लेकर के पहुंच गया। तब तक के हिरकल आजम ने कहा खबरदार रोको, अब्दुल्ला को तेल के हवाले मत करो। देखो उमर का क्या पैगाम आना है। अब जरा सुनियो, गौर करना। आज आप कहते हो कि हमारी दुआएं कबूल नहीं की जाती है, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम सीना का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकार ताजुल शरिया का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे अगर हमने पकड़ा होता तो आज खैरों की तरह शादी ब्याह ना करते। आज हमारे शादियों में डीजे बज रहे हैं, नाच और गाना हो रहा है। हम कहते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर, तुमने पकड़ा कब है? कसम खुदा की, नबी फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौम फहुवा मिनहु, जो जिस कौम की नकल करे वो उसी में से है। तुम्हारा खाना है तो दूसरे कौम की तरह है, तुम्हारा चलना है तो दूसरे कौम की तरह है, तुम्हारा पहनावा है तो दूसरे कौम की तरह है, तुम्हारा उठना बैठना है तो दूसरे कौम की तरह है। फिर भी कहते हो मारे जा रहे हैं, फिर भी कहते हो हम सताए जा रहे हैं, फिर भी कहते हो हम तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं। मुसलमान वक्त है, रब की बारगाह में तौबा कर और नबी के गुलामी का पट्टा गले में डाल ले। अल्लाह उसके रसूल के मोहब्बत का चिराग अपने दिल में जला ले। अल्लाह अकबर। सुनना, हजरत उमर इब्न खत्ताब का जो कासिद पहुंचा, पहुंचने के बाद में कहा अच्छा खत लेकर के आया है उमर इब्न खत्ताब का। उमर ने क्या कहा है? कहा खत में पढ़ लो। अल्लाह अकबर। अब जरा देखो प्यारे, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान थे, हम भी नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो भी नबी का कलमा पढ़ते थे, हम भी नबी कौनैन के नाम का नारा लगाते हैं, वो भी लगाते थे, मगर हम में उनमें फर्क कितना है इस पर आप गौर करें। अल्लाह अकबर। उमर इब्न खत्ताब के तहरीर को जब हिरकल आजम के दरबार में पढ़ करके सुनाया गया तो हजरत उमर ने क्या लिखा था इसको भी आप गौर के साथ सुन लो। और जाफराबाद और गिरदो नमाज से आने वाले मुसलमानों, आज के बाद फैसला करना कि हम और क्या हम क्या थे और आज क्या हो गए हैं, हमारा क्या हाल था और आज क्या हाल हो गया है। अल्लाह अल्लाह। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने खत में लिखा था ए हिरकल आजम, अब्दुल्ला को 80 साथियों के साथ रिहा कर दो। ये तो एक अब्दुल्ला है, वरना तेरे मुल्क पर ऐसे जापान सिपाहियों को भेजूंगा जो आग के शोलों पर सजदा करेंगे, जो समंदर के लहरों पर सजदा करेंगे। इस तहरीर का पढ़ना था, इस जुमले का सुनना था। हिरकल आजम कांप गया और अब्दुल्ला को 80 साथियों के साथ रिहा कर देता है। मुझे कहने दिया जाए ये किसके खत की तहरीर है जिसने हिरकल आजम को कांपने पर मजबूर कर दिया? तो आपको कहना पड़ेगा ये गद्दार की तहरीर नहीं है, ये नबी के वफादार सिपाही हजरत उमर इब्न खत्ताब की तहरीर है। बेशक अल्लाह। ये कौनैन के सच्चे गुलाम बन जाओ, नबी के वफादार बन जाओ। आज हमारा नौजवान आलम यह होता है कि नाच और गाने के नाम पर न जाने कितने पैसे हम खर्च कर देते हैं, मगर बगल में बेवा सिसकियां भर करके रातों रात रोती रहती है। जवान बच्ची की शादी कैसे होगी,
اس کے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ کبھی کسی غریب کے سر پر جا کر کے دست شفقت رکھ کر کے دیکھنا، کبھی یتیم کے سر پر اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے کہنا بیٹا فکر مت کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اے بیٹا جو میں کھاؤں گا تمہیں کھلاؤں گا۔ میں کہتا ہوں غریب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ رو رو کر کے دعا کرے گا تو دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ اللہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ذہن میں جو بات ڈالنا چاہتا اس پر آپ غور کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا کے خلیفہ اول ہیں، اللہ اللہ نبی کے جانشین ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے وفادار سپاہی ہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا، مسلمانوں نے متفق ہو کر کے مسلمانوں کا متفق اور اس وقت کا اتفاق مسلمانوں کا جو فیصلہ ہوا وہ یہ ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب کو خلیفہ مانا جائے، خلیفہ دوم ہے۔ اللہ اللہ ہر مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ اب جہاں پر ابو بکر بیٹھ کر کے خطبہ پڑھتے تھے وہیں پر حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہیں۔ چند بچے اکٹھا ہو کر کے آئے اور آنے کے بعد میں حضرت عمر سے کہتے ہیں ارے وہ میرا امیر کہاں ہے؟ آج وہ کہاں چلا گیا؟ آپ وہاں پر بیٹھے ہو، اے عمر ہٹ جاؤ، میرے امیر کو آؤ۔ ہائے ہائے میرا محسن کہاں چلا گیا؟ آج 3 دن ہو گیا، 3 دن کا عرصہ ہو گیا، میرے بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ ہم یتیموں کے لیے پانی بھر کر کے مکان کے اندر کون لائے گا؟ اے عمر ہٹو ہٹو، ذرا بتاؤ کہ میرا وہ محسن کہاں گیا جو صبح سویرے فجر کی نماز سے پہلے آتا تھا، ہمارے مکان میں پانی بھر کر کے جاتا تھا، ہمارے بکریوں کا دودھ نکالتا تھا؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، بچوں کو سینے سے لگا لیا، کہا بیٹا وہ تو چلے گئے ہیں، مجھے اپنا جانشین بنا کر کے گئے ہیں، مجھے اپنا نائب بنا کر کے گئے ہیں، اے بیٹا چلو میں تمہارے بکریوں کا دودھ نکال دوں۔ اللہ اللہ یہ کیسا سلطان ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے۔ آج چند پیسے ہمارے پاس ہو گئے تو ہم غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، آج ہمارے پاس میں دولت ہو گئی ہے تو یتیم کی طرف مڑ کر کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں، کسی غریب کو اپنے برابر بیٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان مرنا سب کو ہے، قبر میں کیا چہرہ لے کر کے جائے گا؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کیا تو چہرہ لے کر کے جائے گا؟ اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ غریبی میں اور غربت میں میں نے بھی زندگی گزاری تھی اور تم نے غریبی کا مذاق بنایا ہے تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب جاتے ہیں اور جانے کے بعد بکریوں کا دودھ نکالتے ہیں، یتیموں کے لیے پانی بھرتے ہیں۔ اب آؤ ذرا دیکھو، خاک ساری دیکھو، انکساری دیکھو، کون عمر ہے اللہ اللہ جن کے نام سے شیطان بھاگتا ہو؟ حضرت عمر بن خطاب یہ کیسا امیر ہے، یہ مسلمانوں کا کیسا بادشاہ ہے۔ مسلمان کے اب بھی بدلنے کا وقت نہیں آیا، مسلمان کے اب بھی رب کی بارگاہ میں تائب ہو کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا۔ مسلمان 5 وقت مسجد کے مینار سے اذان کی آواز آتی رہتی ہے، ہم اور آپ ہیں جو اپنے مکان میں سوتے رہتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، نوجوان ہمارا موبائل پہ لگا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہم ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے پیتے نظر آتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم اپنے بستر پر سوتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم اپنے کاروبار میں لگے ہیں، پھر ہمارا نوجوان کہتا ہے حضرت ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، علماء کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں حضرت دعا کر دو ہم کامیاب ہو جائیں۔ دبئی گئے تھے پھر ہو کر کے واپس آ گئے، سعودی گئے تھے کامیاب نہ ہوئے، بمبئی گئے تھے کامیاب نہ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں تم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہارے مسجد کے مینار سے 5 وقت آواز آتی ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اللہ جب یہ آواز سننے کے بعد میں سارے کام کو بند کر دینا، مکان کو بند کرنا، دکان کو بند کرنا، سارے کام کو چھوڑ دینا، مسجد میں آنا اور آنے کے بعد میں وضو کرنا، وضو کرنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا اور جھکانے کے بعد میں جب سر کو سجدے سے اٹھانا عرض کرنا میرے معبود، سر جھکانا یہ تیرے بندے کا کام اور کامیاب کرنا یہ پروردگار کا کام۔ اللہ اللہ کامیابی تیری قدم چومے گی۔ آؤ ذرا دیکھو، پر شرط ہے کہ پیارے خاکساری اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، نبی کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اللہ اللہ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ آج شادیوں میں دیکھو تو غریب بچیوں کے لیے غریب بچی کے دروازے پر بارات جانے سے پہلے فرمائش ہو رہی ہے مرغی فرائی چاہیے، اللہ اللہ بکرے کا گوشت چاہیے۔ میں کہتا اے لوگوں سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کو اللہ پر تم نے نہیں دیکھا، رسول پاک نے اپنے بیٹی کی شادی کی، وہ منظر تیرے نظروں کے سامنے نہیں ہے۔ مسلمان آخر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے تو شادی کرے گا تو بتا تیری شادی کامیاب ہوگی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میری شادی کامیاب ہو جائے تو توبہ کر لے کہ آج کے بعد سنت نبی کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، ہماری شادی
शादी होगी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक होगी, हमारा कोई कारोबार होगा तो नबी के सुन्नत के मुताबिक होगा। कसम खुदा की, जमाना कल भी हमें सलाम करने को तैयार था, आज भी सलाम करने को तैयार है। क्या वजह थी? पहले जब एक गैर मुस्लिम, यही हजरत हुजूर अमीन शरीयत है, लोग बयान करते हैं कि आप गुजर रहे थे, एक गैर मुस्लिम अपने दुकान में बैठा हुआ था, अल्लाह अल्लाह उसने देखा और देख करके मन में ये बात सोची, काश ये मौलाना साहब किबला जो आ रहे हैं मुसलमानों के रहनुमा है, मुसलमानों के अमीर हैं, अल्लाह अल्लाह नाइब रसूल है, एक काश मेरे दुकान पे कदम पड़ जाती तो दुकान में बरकत होती। मैंने सुना है कि मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के जो मौलाना होते हैं, जो नाइब रसूल होते हैं, उनकी दुआएं रब ताला कबूल फरमाता है और उनके कदमों की बरकत से मकान में बरकत होती है, दुकान में बरकत होती है। कहते हैं हजरत आगे चले गए, वो सोच रहा था मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो एक गैर मुस्लिम हूँ, हजरत हमारे मकान में क्यों आएंगे, हमारे दुकान में क्यों आएंगे। अल्लाह अल्लाह चंद कदम गए थे, सरकार अमीन शरीयत वापस पलट करके आए और आने के बाद में कहते हैं अरे बाबा ये क्या कह रहे हो, क्या सोच रहे हो। कहा हजरत अभी यही मैं सोच रहा था कि आप तो मुसलमानों के अमीर हैं, आप तो नाइब रसूल हैं, मुसलमानों के मौलाना हैं, हमारे मकान में कैसे आएंगे, हमारे दुकान में कैसे आएंगे। मगर दिल मचल रहा था कि आपके कदम पर जाए तो दुकान हमारी चलने लगे। अल्लाह अल्लाह हजरत कहते हैं लाओ मैं आ गया ना, अब जो पेश करो अल्लाह अकबर वो खा लूं, वो तुम्हारे दुकान पर बैठ जाऊं ताकि तुम्हारा दिल बहल जाए। अल्लाह अल्लाह ये हमारा किरदार था, ये अमीन शरीयत का मिशन था कि गैर मुस्लिम भी कहते थे ये है इस्लाम के मानने वाले, ये है इस्लाम के चाहने वाले, ये है मुसलमान। अल्लाह अल्लाह दूर से एक गैर मुस्लिम खड़ा होता था और कहता था खड़े हो जाओ, नबी का वफादार सिपाही आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। और आज क्या वजह है, तुम्हें कोई कर्जा देने को तैयार नहीं है, कोई तुम्हारी तरफ देखने को तैयार नहीं है, तो कहना पड़ेगा नबी के नक्शे कदम पर हम चलना छोड़ दिए हैं, आज गैरों की नकल करते हैं। मुसलमान अब भी वक्त है, तौबा कर, रब की बारगाह में सजदा कर, अल्लाह को मना ले, मदीने के ताजदार को खुश कर ले, कामयाबी तेरी कदम चूमती हुई नजर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर अमीन शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ अमीन मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, अमीन शरीयत की रूह तुम्हें आज भी आवाज दे रही है, आओ आओ खाने खुदा में आ जाओ, आओ आओ उलमा के करीब आ जाओ। आज लॉकडाउन का मामला हुआ, मैंने देखा, मैं तो राजस्थान रहता हूँ, वहाँ पर नेता टाइप बन करके लोग दिखाने के लिए अखबार में फोटो छपवा रहे थे। अल्लाह हो बन न जाने कितने इमाम का फोन आया कि कोई हाल पूछने को नहीं आया। बताओ मुसलमानों, जो तुम्हारे मुसल्ले पर खड़े होकर के नमाज पढ़ाता हो, जो तुम्हारे कब्र पर खड़े होकर कहता हो इलाहुल आलमीन हम तो पापी हैं, गुनहगार हैं, मगर मौला सूरे फातिहा हमने पढ़ी है, ए परवरदिगार तिलावत कलाम रब्बानी की बरकत से मौला इस मुर्दे की मग़फ़िरत कर दे। जो तुम्हारे मुसल्ले पर बैठ करके तुम्हें अमन और शांति के लिए दुआ करे, तुम्हारे दुकानों मकान में खैर और बरकत की दुआ करे, जो तुम्हारे मुसल्ले पे खड़े होकर के नमाज पढ़ाए, जो कब्रिस्तान जाकर के तुम्हारे मुर्दों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करे, उसके हाल को तुम नहीं पूछते हो और मैदान क़यामत पे रसूलुल्लाह की बारगाह में कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे। अमीन शरीयत का ये पैगाम नहीं है, अमीन शरीयत का ये मिशन नहीं था, अमीन शरीयत का तो मिशन ये था प्यारे, गरीबों को सीने से लगाते थे, उलमा की मोहब्बत का पैगाम देते थे, नाइब रसूल से मोहब्बत करो, नबी के गुलामों की कदर करो, मस्जिद के नमाजियों का एहतराम करो, बुजुर्गों का अदब करो, और बुजुर्गों को कहते थे कि छोटों पर शफकत करो। आखिरी बात पेश करूं, बयान खत्म कर दूं। अल्लाह अल्लाह आज हम हैं जो देखो खाए जा रहे हैं, ना हराम का पता ना हलाल का पता, फिर कहते हैं हजरत हमारी दुआ कबूल नहीं की जाती है। सुनो प्यारी, रिज़्क़ हलाल खाया करो, हराम लुक़मे से बचा करो। रिज़्क़ हलाल जब खाओगे तो हमारी जुबान साफ और शफाफ आईने की तरह हो जाएगी, हमारा दिल साफ हो जाएगा, फिर हम दुआ करेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। मगर जब रिज़्क़ हलाल के बजाय हराम लुक़मा हमारे हलक के अंदर जाएगा तो फिर हमारा काला सियाह हो जाएगा, फिर हम लाख या अल्लाह कहते रहे, हमारी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। आओ आओ मुसलमानों, कसम खुदा की, आप खुद अगर गोश्त खाते हो तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं गोश्त अगर आप मकान में बनाते हैं तो या तो छुपा करके बनाएं। कहा गया या रसूलुल्लाह गोश्त को छुपा करके क्यों बनाएं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं हो सकता है उसकी खुशबू तुम्हारे पड़ोस में पहुंचे और तुम्हारा पड़ोसी कोई गरीब हो, कोई बेवा हो, कोई यतीम हो, अल्लाह अल्लाह उसके बच्चे माँ के दामन को पकड़ के मचल जाए, अम्मी मुझे भी गोश्त खाना है। वो बेवा खातून कहाँ से लेकर के आएगी? या तो इतना शुरुबा बढ़ा दो, इतना गोश्त लेकर के आओ ताकि पड़ोसी के घर भिजवा
बता दो, हम उस मजहब का कलमा पढ़ते हैं जिसने हमें ये पैगाम दिया है, उस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी के हम मानने वाले हैं जिस नबी ने हमें अखलाक सिखाया है, मोहब्बत का पैगाम दिया है, अमन और शांति का पैगाम दिया है। अल्लाह अल्लाह, आप खुद खाते चले जा रहे हो, न तो आलिमों का ख्याल है, न तो गरीबों का ख्याल है, न यतीमों का ख्याल है। आओ अमीन शरीयत की रूह आज भी तुम्हें आवाज देती है, ए जाफराबाद के सुन्नी मुसलमानों, ए जाफराबाद के गिरदो नमाज से आने वालों, आओ आओ आज उनसे अमीन शरीयत में तौबा करके जाओ कि आज के बाद हम किसी गरीब के हक को नहीं मारेंगे, किसी बेवा पर जुल्म नहीं करेंगे, किसी यतीम पर जुल्म सितम के पहाड़ को नहीं तोड़ेंगे। आज से हम नमाज की पाबंदी करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे अपने मकान में। आज से तकरीबन 25 साल पहले की आप अपनी जिंदगी को उठा के देखें, जब सुबह सवेरे फजर की अजान होती थी, नमाज पढ़ने के बाद में जब कोई किसी गांव से गुजरता था तो क्या देखा जाता था, गांव घर का जो बड़ा बूढ़ा होता था वो दरवाजे पर बैठ करके बुलंद आवाज से कुरान पाक पढ़ता था। मगर आज आलम यह है प्यारे कि 10-11 दिन के बच जाते हैं, नौजवान सोता रहता है और फिर भी कहता है हमारे मकान में बरकत नहीं हो रही है, हमारे दुकान में बरकत नहीं हो रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, अल्लाह अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक एक मरतबा मस्जिद से निकले। आज हमारे पास माल आ जाए तो हम किसी को जोड़ते नहीं है और कहते हैं किसको पाऊं, किसका कत्ल कर दूं, मर्डर कर दूं, अल्लाह अल्लाह। मगर आओ हजरत अबू बकर सिद्दीक के जिंदगी को सुनो, बयान खत्म कर दिया जाए। हजरत अबू बकर अमीर है, मुसलमानों के बादशाह है, मुसलमानों के सुल्तान है, नबी के जानशीन है। आप मस्जिद नबवी शरीफ से नमाज पढ़ा करके निकले, सुबह फजर का वक्त है। अल्लाह अल्लाह, एक शख्स ने आवाज दिया है जो मेरी मरी हुई बकरी को कोई जंगल में फेंक दे, कोई मजदूर मिल जाए। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और बढ़ने के बाद में कहते हैं ये बताओ भाई कितना दीनार दोगे? कहा 2 दीनार दूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, मरी हुई बकरी को लेते हैं और लेने के बाद जैसे चले मुसलमानों की नजर पड़ती है, मुसलमानों की चीखें निकल गई, या अमीरुल मोमिनीन, आप मुसलमानों के अमीर हैं, नबी के जानशीन हैं, लोग क्या कहेंगे? मुसलमानों का सुल्तान मरी हुई बकरी को जंगल में फेंकने के लिए जा रहा है। तब तक के अबू बकर के आंखों में आंसू आ गए और रो करके कहा था ए लोगों, अगर मैं मजदूरी नहीं करूंगा तो अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? अल्लाह अल्लाह, सुल्तान है, मुसलमानों का बादशाह है, पूरा बैतुल माल आपके कब्जे में है। लोगों ने कहा सरकार बैतुल माल पर आपका कब्जा है, पूरा खजाना आपके कब्जे में है, ऐसी आप बातें करते हैं। आप रोने लगे। कहा बैतुल माल में से अगर मैंने 1 रुपया भी खर्च कर दिया, बैतुल माल में से 1 दिनार भी खर्च कर दिया तो अबू बकर मैदान क़यामत में अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाएगा? बैतुल माल ये हम अबू बकर का नहीं है, ये मुसलमानों की अमानत है। अल्लाह अल्लाह, अमानत में हम खयानत नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, मुसलमानों के बादशाह है, खाससारी का ये हाल है, इनकसारी का ये हाल है। ए लोगों, अगर तुम भी नबी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो अबू बकर तो नहीं बन सकते हो, अबू बकर के गुलाम बन जाओ। अबू बकर के गुलामी का पट्टा अपने गले में डालो। अजमत कुरान पर, आज कुरान की अजमत पर और कुरान पर हमला किया जा रहा है। आप तैयार हो, मैदान में आए, एहतजाज करें और जालिम को सजा दिलाएं। अल्लाह ताला हम सबके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमाए। जब तक के दुनिया में रहें आशिक नबी बन करके, और जब दुनिया से जाएं तो गुलाम मुस्तफ़ा बन करके। सलाम उस पर के जिसमें फजल के मोती बिखेरे हैं, और सलाम उस पर के जिसमें गुनहगारों को फरमाया कि मेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। जलसा-ए-नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।